So welcome back to this channel, and it is the second full guide which I am posting on this channel. Like, to be honest, I give you a full respect that you watch my videos. It's simply because in videos में कोई dopamine नहीं है. There are no edits. They are just me speaking and providing value and knowledge directly to you, with zero edits, with zero cutouts, and no bullshit of the self improvement other यूट्यूबर्स जो बहुत सारे एडिट्स एंड वो सब पोस्ट कर देते हैं. आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव क्लिक्ड टू दिस फुल गाइड ऑफ इंक्रीजिंग योर हाइट, द फर्स्ट फैक्ट यू नीड टू एक्सेप्ट इज कि यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. You need to get that thing in mind that yes, you feel short, you feel insecure about your height. Maybe you are 5'9", 5'10", 5'11", you have pretty good height, but still तुम्हारे दिमाग में वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि यार मेरे साथ वाला दोस्त तो 6'2" का है और मैं 5'11" का हूँ. That little sense of insecurity that you want to get a little bit more inches in your height, but you feel like your growth plates are closed. तुम अब और लंबे नहीं हो सकते, तुम्हारी उम्र निकल गई है. But let's get to the context of this video first. पिछले 10-12 दिन से मैंने कोई अपलोड नहीं किया. For that 12 or 15 days of time span, I was actually writing the first ebook. The ebook to this video, which is, I named it 6 feet method. I literally wrote a 50 pages or 48 pages of full guide to just for you, with every single knowledge that you can find, which is proven scientifically, with the researches, with actual methods and my own routine. On that ebook with a very nominal price, like इतना सस्ता प्राइस कि तुम्हारे PUBG के UCs उससे ज़्यादा महंगे हैं. The price is 249 rupees. The link is the description. You can buy the ebook about how to increase height. But as if you don't want to buy it, you can watch this full video. It will eventually going to help you a lot on this topic, that how you can increase your height. And for context that you will think कि मैं इस बंदे की बात क्यों सुनूं about increasing height, let me give you a story first. Like, you will understand that why you should watch this full guide, which is of course a boring one because it's pure knowledge, not entertainment. It's pure practical steps, not entertainment. So क्यों तुम्हें इस वीडियो को देखना चाहिए? When I was in my class 11th, which is 2.5-3 years ago, मैं एक टर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था. मुझे वो टर्म पता था पहले से, बट मैं इंट्रोड्यूस और उस पर काम करना, लाइक रिसर्च करना उस टाइम पे स्टार्ट किया था. दैट वर्ड वाज टेस्टोस्टेरोन. हाँ, मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे रिसर्च स्टार्ट करी, गूगल पे लिखना स्टार्ट किया टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के बारे समझने लगा, दैट हाउ टेस्टोस्टेरोन वर्क एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मेल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मेन. टेस्टोस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? मैं जब उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, आई केम अक्रॉस वन थिंग विच इज कॉल्ड HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. वो हार्मोन आपकी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है. एंड अ लॉट ऑफ अदर साइंटिफिक टर्म्स विच आर ऑलरेडी पुट इन माई ई बुक, जो कि मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है, बट आई रीड दैट ई बुक एंड कुछ चीजें मेरे को उस ई बुक की याद है बिकॉज आई put 100% effort to make that ebook. Like, I took actually वो ebook लिखने में मुझे 15 दिन लगे, but the knowledge behind it was of 3 fucking years. So you get the value of it. Leave that aside. I am not pressing you to buy it. It's your choice. So let's get to the point of the full guide. So तुम्हें full guide इसलिए देखनी चाहिए because मैं उस टाइम पर टेस्टोस्टेरोन से इंट्रोड्यूस हुआ. Then I introduced that how we can increase our height, मतलब
क्या मतलब आई गॉट क्यूरियस कि इज देयर एनी स्टेप्स दैट आफ्टर गेटिंग growth plate closed, is there any option that how to increase height? And did I increased my height after it? Of course I did, 3 inches, because मैं इस चीज से बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था. बट इफ यू आर यंग, इफ यू आर 15 16, you can take a full advantage of this, this full guide. If you watch this full fucking video, I don't know how long it will be, how short it will be, I don't know that, but if you fucking watch this video, I am telling you that, and you follow and implement the steps, I guarantee you that you will see a massive change in your height when you will, after 3 years 4 years, the time span of 4 years. अगर तुम्हारी height actual में 5'9" होनी थी, you will be 6'1". Yes, I am taking the guarantee for it. If you are young and you're doing it, and if you are already 19 20, then it will definitely work for you, but you have to put extra efforts, and your results will be not so, like 7 8 inches nahi, but if you're 5'11", I can tell you that you can reach 6'1". Yes, 2 inches का फर्क तो पड़ेगा ही, because मुझ में पड़ा. I am live example by following these steps for years, like for a year, not for years. I will not lie, for a year I followed these steps, and I will tell you my routine too, what I actually do. So as I told you कि मैं पिछले 3 साल से 2.5 3 साल से like बहुत क्यूरियस रहा इस चीज के पीछे, एंड टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर से नॉलेज, इधर उधर से रिसर्च, इधर उधर से आर्टिकल्स, इधर उधर से पॉडकास्ट देखे कि इज देयर एनी practical steps to increase height, and finally I grabs all that knowledge and put into one fucking thing, which is a guide, which is this full guide, and another thing is my ebook. So मैंने पूरी नॉलेज को गैदर किया, कुछ लोगों को कंसल्ट किया दैट हाउ टू राइट अ बुक, एंड हाउ टू प्रैक्टिकली इन टर्म्स को क्या बोलेंगे, हाउ टू प्रेजेंट इट टू यू दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू. सो मैंने उन सब चीजों को गैदर किया, एंड हियर आई एम मेकिंग अ फुल गाइड ऑन इट, हाउ to increase your height, which is called a 6 feet method. Let's directly get into it. So the step 1 or method 1 is fracturing method. What I mean from fracturing method, कि भाई एक चीज को समझना, you have to treat your bone like a muscle. अब मेरी बात को समझना, मसल ग्रोथ कैसे होता है. अगर तुम वर्कआउट करते हो तो यू विल रियलाइज कि मसल ग्रोथ कैसे होता है. तुम अपनी मसल को डैमेज करते हो, देन वो हील होती है, एंड इट टर्न्स आउट टू बी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सेम गोज विद द बोन. तुम अपनी बोन को माइक्रो फ्रैक्चर्स दोगे. अब माइक्रो फ्रैक्चर्स मतलब ये नहीं कि अपना एक्सीडेंट कराओगे, यहाँ अपने पैर में हथौड़ा मार लोगे, नहीं. आई विल एक्सप्लेन इट. तुम अपने बोन को माइक्रो फ्रैक्चर्स दोगे, उसके बाद your bone will recover and it will turn out to be stronger and longer. अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बकवास कर रहा है, फ्रैक्चर कैसे. Actually go and research it. In 19th century, Jules Wolfe was the one who discovered this bone structures. That अगर तुम bone structures को एक stress के अंदर पुट करते हो, एक स्ट्रेस सिचुएशन में, देन दे ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर, विच इंक्रीज योर बोन डेंसिटी एज साइज, ऑल्सो द साइज ऑफ योर बोन्स. सो इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग एंड इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग. सो हाउ यू पुट फ्रैक्चर्स टू योर बोन, आई विल गिव यू 3 protocols for it. The first one is sprinting protocol, which is the best one. So start doing sprints. 8 sprints of 200 meter is more than sufficient. और इस चीज को लेवल अप करने के लिए धीरे धीरे एड एंकल वेट्स, बैक वेट्स, लाइक बैकपैक में वेट भर के दौड़ना स्टार्ट करो. स्टार्ट फ्रॉम 500 ग्राम, देन गो टू 1 kg, देन गो टू 2 kg. It will increase your speed, plus it will give you your bone minor fractures that damage which similar as muscles. जो सेम मसल के लिए तुम्हारे डैमेज होंगे ना, इमेजिन योर बोन एज योर मसल, कि वो भी उस तरीके से डैमेज हो रही है, एंड दैट विल रिकवर, हील, एंड ग्रो बिगर एंड लॉन्गर.
यू नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि दैट इट इज एक्चुअली अ ट्रुथ. तुम्हें बिलीव करना होगा इस चीज को. आई एम टेलिंग यू. और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, राइट द हेल नाउ एंड गो एंड रिसर्च द फुल वुल्फ मेथड. In 19th century, Jules Wolfe discovered it. I'm even telling you the name of the scientist who did that. So go and research about it. So तुम्हें sprinting करनी है 8 into 200 meters with a little bit weight. पहले बिना वेट के करो, स्टेमिना बिल्डअप करो, देन गो विद द वेट्स टू इंक्रीज द लेवल. सिर्फ 8 सेट करो 200-200 मीटर के. You don't no need to do that more than that. और इसको भी वीक में 2 से 3 बार ऐड करो अपने रूटीन में. You will see the changes. It will increase your testosterone plus HGH, which is human growth hormone, both together. And testosterone increase होने से it gives you additional energy and additional benefits. But your major focus is on HGH. So the second protocol is स्विमिंग प्रोटोकॉल. तुमने ये तो सुना ही होगा कि स्विमिंग करने से हाइट बढ़ती है, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट. स्विमिंग करने से हाइट बढ़ती है, बट अगर तुम स्विमिंग को प्रॉपर वे में करो, व्हेन यू एक्चुअली स्ट्रेच योर लेग्स एंड हैंड्स फुली, देन योर जो तुम्हारा स्पाइन है वो कॉम्प्रेस की जगह डीकॉम्प्रेस होता है और वो और खुलता है, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर हाइट. एंड द थर्ड प्रोटोकॉल इज साइकिलिंग. साइकिलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन चीजों को अल्टरनेटिवली अपने वीक में 1 या 2 बार ऐड करो. स्विमिंग को, साइकिलिंग को, स्प्रिंटिंग को, एंड इवेंचुअली मूव होते रहो इन 3 चीजों में, बट डू इट विथ योर 100% एफर्ट एंड 100% करेक्ट फॉर्म, बिकॉज दैट्स गोना डैमेज योर spine, like fracture, micro fractures on your spine, micro fractures on your legs, and that's gonna heal, and that's going to give you a longer and stronger bone. You can increase your height by that. Even though ये तीनों protocols और ये तीनों activities बहुत ही normal sound कर रही होंगी, but they are actually anabolic to your growth. Believe me, and I am telling you again and again, if you don't, go research about it. Go actually search it. You will find it. You will actually find it. What I'm trying to say. So now the second method, which is nutritional methods. Now तुम्हें ये चीज तो समझ आ गई कि तुम्हें अपनी बोन को माइक्रो फ्रैक्चर्स देने हैं and treat it like a muscle. So you have to take diet like a muscle. समझे? जब तुम मसल को अपनी डैमेज करते हो, then you take high protein to heal it and recover it and make it stronger and bigger. Same goes with the bone. तुम्हें अपनी बोन के लिए भी वही करना होगा. तुम्हें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे विटामिन्स, ऐसे सप्लीमेंट्स और मे बी ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी बोन को हील हो, बोन को सपोर्ट मिले एंड वो स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर और बिगर इन साइज डेवलप हो और हील हो सके. सो द फर्स्ट and the most important vitamin you can say is glucosamine. It is an essential vitamin that can be gained from lobsters, crabs and shellfish. It is mainly found in seafood, but अब बहुत से लोग सी फूड एंड हमारे इंडिया में ऐसा सी फूड बहुत इजीली हाई क्वालिटी अवेलेबल नहीं है. देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 एंड एवरीथिंग लाइक दैट. जो भी तुम्हें सप्लीमेंट्स मिलते हैं ग्लूकोसामाइन के, उस चीजों को इनटेक करना स्टार्ट करो. बट आई वुड से बाय दैट सप्लीमेंट्स फ्रॉम अ ट्रस्टेड ब्रांड. किसी भी ब्रांड से बाय मत करना. कोई भी सस्ते सुस्ते जाके मेडिकल में जाके पूछ के कुछ भी मत लेके आना. एक्चुअली बाय फ्रॉम अ सर्टिफाइड एंड ट्रस्टेड ब्रांड. आई एम टेलिंग यू दिस. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ योर डाइट इज प्रोटीन. यस, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर मसल, बट ये तुम्हारी हाइट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर योर बोन्स. बिकॉज स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा और डिटेल में घुसूं तो प्रोटीन में ना एमिनो एसिड्स होते हैं विच आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट अगर तुम ग्रास फेड हाई प्रोटीन लेते हो, जैसे अपने स्टेक से, चिकन से, एग्स से, देन जो तुम्हारा प्रोटीन इनटेक है वो प्रोडक्शन तुम्हारा
हाइट को भी ज्यादा सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारा IGF-1 बढ़ाएगा। एंड व्हाट इज IGF-1? दैट इज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। वो उसे बढ़ाने में भी सपोर्ट करता है, विच इवेंचुअली डायरेक्टली हिट्स योर बोन ग्रोथ, बोन हेल्थ में। So it is really important for you to focus on that. Now the third thing, which is a very crucial one, I will go, is zinc and magnesium. Zinc and magnesium तुम्हें एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्लीप, पॉजिटिव स्लीप देता है, जो तुम्हें एक डीप स्लीप देता है, जिसके कारण तुम्हें बहुत इजीली चीज़ें रिकवर होती हैं। लाइक तुम्हारी मसल ग्रोथ बढ़ेगी, तुम्हारी बोन ग्रोथ बढ़ेगी, तुम्हारी रिकवरी बहुत ज़्यादा एक्स बढ़ जाएगी, लाइक 3x 4x तुम्हारी रिकवरी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड आई विल से कि अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी है, देन योर HGH, IGF-1 एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ बहुत अच्छे परसेंटेज में इंक्रीज होते हैं while sleeping, while you are recovering your body. So it is very essential that you should take these supplements if you are focused on growth. ऐसे फूड खाओ जिनमें जिंक ज्यादा हो, जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा हो, और अगर सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो देन अगेन गो फॉर द ट्रस्टेड ब्रांड्स। Now the third and fourth point on this nutritional method is कि कुछ लेना नहीं है, अब कुछ चीजें इग्नोर करनी है। क्या चीजें इग्नोर करनी है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? You have to avoid things which are high in estrogen, foods which are high in estrogen, and that goes by is stop eating processed food. Processed food, soya foods खाना बंद करो, लाइक लिटरली जीरो कर दो उनको अपनी लाइफ से। इफ यू रियली वॉन्ट दिस मेथड टू वर्क ऑन यू, 0% प्रोसेस्ड फूड, 0% एस्ट्रोजन फूड, बिकॉज एस्ट्रोजन इज समथिंग दैट क्लोजेज योर ग्रोथ प्लेट्स इन अ मेल बॉडी, बिकॉज तुम्हारा बॉडी ग्रोथ फंक्शन करती है टेस्टोस्टेरोन से। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, maybe there is a reason that your estrogen levels are competing them, वो दोनों में कंपटीशन हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइक तुम सोया फूड ज्यादा खा रहे हो, या तुम ऐसा फूड ज्यादा खा रहे हो जिसमें एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं, सो शायद तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ग्रोथ मिलने की जगह एस्ट्रोजन इज यूजिंग दैट एनर्जी, एंड वो भले ही टेस्टोस्टेरोन से कम है तुम्हारी बॉडी में, बट वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को और बढ़ने से जरूर रोक रहा है। इट इज पुलिंग इट बैक। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, दैट यू हैव टू अवॉइड दैट एस्ट्रोजन फूड्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट यू शुड टेक ग्लूटामाइन एंड विटामिन D3 and K2, which are essential for promoting HGF and IGF-1 in your body, and it will increase your bone density and it will make your body stronger. एंड तुम इन्हें किन फूड से ले सकते हो? इट कैन बी एग्स, इट कैन बी नट्स, इट कैन बी बीन्स एज वेल एज पीनट्स। ये एक बेसिक फूड है जो इजिली अवेलेबल है, और इन सब से तुम इंक्रीज कर सकते हो अपना ग्लूटामाइन एंड विटामिन D3 एंड K2। I'll be honest, it's actually very hard to remember all of this. Like मैं ये फुल गाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत जगह फंबल कर रहा हूँ, मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कहीं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ। आई एम एक्चुअली मेमोराइजिंग इट कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने अपनी रिसर्च में रखी है, मेरे को ये चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं उन चीज़ों को एक्चुअल में याद कर रहा हूँ। सो इसलिए शायद थोड़ी चीज़ें फंबल हो रही हैं, एंड थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज मैं एक्चुअली उन चीज़ों को मन में याद कर रहा हूँ कि हाँ मैं सही नाम दूँ साइंटिफिकली। दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर गाइड आई रोट अ ई बुक, आई एक्चुअली रोट अ ई बुक फॉर इट, बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं विच आर हार्ड टू रिमेंबर, एंड इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं विच आर एक्चुअली हार्ड टू रिमेंबर। सो you can still buy it if you want. Now let's move on to another method, which is heat method. Till now we have discussed nutritional method, we have discussed fracturing method. अब मैंने इस वीडियो को एक सीक्वेंस में पुट किया है। लाइक फर्स्टली तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी बोन को तोड़ना कैसे, उसके बाद तुम्हें समझ आया कि इसे हील कैसे करना है, क्या चीजें खानी जिससे चीजें हील हो, कौन सी न्यूट्रिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू heal your bone and increase your testosterone and HGH and IGF-1. So
अब तुम्हें समझ आएगा, मतलब जो हीट मेथड है, जो कि थर्ड मेथड है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ हीट, हार्मोन्स एंड स्लीप are related and help you to increase your testosterone, help you to increase your HGH and overall growth hormones in your body, and also recovery. So let's directly get into this method. The first thing and the most simple thing you can do is, if you have a gym membership, start taking steam baths or sauna twice a week for 30 minutes. Actually, अब ये तुम्हें 200 to 300 एक्सटेंसिव प्लस आपको ये HGH प्रोवाइड करता है, दिस सोना. यस, वो हीट, सोना की हीट और स्टीम की हीट तुम्हें लिटरली 300 to 5% ज्यादा ग्रोथ शो करेगी HGH में. लुक, इट इज सो सिंपल. इफ यू ऑलरेडी इन अ जिम, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकालना है एंड यू हैव टू टेक सोना. नाउ for additional benefits, merge it with a cold shower. Like, for example, मैं क्या करता हूँ, I actually take sauna 2 times a week. What I actually do is, I, after finishing a workout, go directly to a cold shower. Then I go to sauna for 30 minutes. Then I come back and take a cold shower again. And that time मैं अपना सारा बाथरूम बिजनेस करता हूँ, like शावर जेल से बॉडी को क्लीन करना है, एनीथिंग लाइक दैट. मैं अपनी बॉडी को तब क्लीन करता हूँ, नॉट बिफोर दैट. एंड इससे कोल्ड एंड हीट एक्सपोजर मुझे साथ में मिलता है, एंड दैट रियली इंक्रीज योर HGH बाय 200 to 300%. इट रियली डज. अब तुम्हें इसी के साथ इसका सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारा HGH होता है ना, विच इज अ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो रिलीज होता है ड्यूरिंग मिडनाइट फ्रॉम 10 to 12 PM, जैसे स्टडीज ने शो किया है. और इससे पता लगता है कि यू नीड अ स्लीप ऑफ 8 to 10 hours. तुम्हें 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए. बट ये एक चीज को ध्यान रखना, अगर तुम डेली सेम डे सेम टाइम सो रहे हो एंड सेम टाइम उठ रहे हो, देन समझ लो कि तुम अपने आप को 5x और 10x ग्रोथ ज्यादा दे रहे हो विथ a person compared to doing all the steps, but his sleep schedule is not perfectly match every day. वो आगे पीछे, कभी वो 10 बजे सो रहा है, कभी वो 12 बजे, कभी 1 बजे सो रहा है. वो सो तो 8-9 घंटे के लिए ही रहा है, बट कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है. तो तुम्हें एक चीज समझना होगा, यू हैव एडवांटेज if you are sleeping in a same time every day and waking up at same time every day. So you are in an advantage. So इस particular time पे तुम्हारा HGH रिलीज होता है. So it is really important, because मैंने इस मेथड की स्टार्टिंग में कहा था, believe it or not, but heat, hormones and sleep are all related. So मैंने बोला था कि मैं इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ दिस मेथड के अंदर. एंड द थर्ड थिंग which is out of box context, but I have put this in the heat method because ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, which is fasting. Now I don't mean कि तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग में जाओ, कि तुम एक दिन पूरा भूखा रहो, बट एक्चुअली गिव इंटरवल्स टू योर डाइट्स, योर मील्स. लाइक अगर तुमने फर्स्ट मील सुबह 8 बजे ली है, देन टेक सेकंड मील एट 2 PM. आफ्टर दैट टेक थर्ड मील एट 7 PM और 8 PM. सिंपल. मैं मेजर मील्स की बात कर रहा हूँ. बीच में अगर तुम कुछ स्नैक्स खा रहे हो, लाइक फ्रूट्स ले रहे हो, सो आई एम नॉट काउंटिंग इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर मील्स वेयर तुम 800, 900, 1000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो. एट दैट मोमेंट कीप 6 hours, एटलीस्ट 6 hours ऑफ गैप बिटवीन देम, बिकॉज वो तुम्हें एक ये मतलब ये बहुत एक सिंपलेस्ट फास्टिंग का रूटीन है. इफ यू डू दैट, यू विल इंश्योर दैट तुम्हें HGH को ऑप्टिमाइज करने का बहुत अच्छा तुम टाइम निकाल रहे हो पर्टिकुलर. बिकॉज अगर तुम फास्टिंग करते हो, तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस होने का, जो तुम्हारी एज है, मैंने बताया कि इफ यू आर 16 to 18, दैट 15 to 18 एक्चुअली, सो तुम्हारे हार्मोन बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं. बट अगर तुम इस फास्टिंग के पीरियड को समय देते हो, देन तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का, ऑप्टिमाइज होने का टाइम मिलता है. दैट्स माई पॉइंट हियर फॉर द फास्टिंग वन. यू गेट माई पॉइंट आई गेस. सो अनदर थिंग इज, जैसे कि मैंने तुम्हें फैक्चरिंग मेथड बताया दैट इट इज रियली, देख पहली चीज मेरी एक चीज को समझना,
मैं तुम्हें जो भी मेथड्स बता रहा हूं, अगर मैं उन्हें एक सीक्वेंस में बता रहा हूं, देन आई हैव अ पर्पस बिहाइंड इट. इस वीडियो को सीक्वेंस में ही देखना. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू बी, सो प्लीज वॉच इट इन अ सीक्वेंस, बिकॉज मैंने पर्पसफुली इन चीजों को सीक्वेंस में बताना स्टार्ट किया है, क्योंकि हर एक चीज, एवरी सिंगल थिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर. वो सारी रिलेटेड है एंड कंबाइन करने पे ही वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. सो अभी हम लोग हीट मेथड के मैं एक और पॉइंट में आया हूं. जैसे मैंने फ्रैक्चरिंग मेथड में तुम्हें बताया था कि स्विमिंग करने से तुम्हें वो मिलता है, लाइक माइक्रोफ्रैक्चर्स होते हैं एंड यू गेट ग्रोथ व्हेन यू फुली एक्टिव योर लेग्स एंड योर हैंड्स. सो अपने स्विमिंग रूटीन के साथ, इफ इट इज पॉसिबल, एड सोना. लाइक take a cold shower, jump into a swimming pool, and do your swimming routine for 1.5 hour or 1 hour, and then go to sauna. I'm telling you, it will increase your testosterone, your IGF-1, plus your HGH with 100, not 100, I will say, with 1,000 or 2,000% increment. That's not fucking bullshit. Go research it. Go type that in shit in Google and you will believe what I am saying. It's actually shown. You will see athletes doing swimming, then going to the sauna, or at least you, अगर इतना डिटेल नहीं पता, तुमने ये तो जरूर देखा होगा, going to the cold shower, then going to sauna, then going to cold shower, then going to sauna again. So इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. Like it is a life hack if you do sauna and swimming together, actually, because तुम्हारी मसल ब्रेक हो रही है, तुम उसे रिकवरी दे रहे हो, मसल ब्रेक हो रही है, तुम उसे रिकवरी दे रहे हो. लाइक फ्रॉम मसल आई मीन बोन microfractures, which I told you and explained you in fracturing method. Now if we move further to this point for this heating method, another point which is sun exposure. You know, ये एक सबसे फ्री और चीपेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल एंड कन्वीनियंस point है that you can have sunlight every fucking day, which will increase your vitamin D and give you, you know, handful minutes or hour of sun exposure can give you a lot of additional benefits, not just height but बहुत ज़्यादा additional benefits हैं उसके. So उन सब की तो हम कभी और बात करेंगे, but the major thing here is that it provides you naturally vitamin D, जो कि आजकल 90% ऑफ पीपल में लैक करती है. इफ यू गो फॉर अ टेस्ट, हो सकता है तुम्हारा विटामिन डी लैक कर रहा हो, बिकॉज हम सनलाइट से एक्सपोज होते ही नहीं है. आई टेक एवरी सिंगल डे 20 to 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोपहर को 1 बजे जाके मई में बाहर जाके खड़े हो जाओ, नहीं, यू विल डैमेज योर स्किन एंड इट विल इवन, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी अगर तुम रात दोपहर को 1 बजे जाके बाहर खड़े हो जाते हो. नहीं, बट द मॉर्निंग एंड इवनिंग गोल्डन आवर ऑफ सनलाइट, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है दैट गोल्डन आवर, गोल्डन पीरियड ऑफ सनलाइट, विच इज फ्रॉम मॉर्निंग 5 to 7 or 8 एंड इवनिंग जब वो सनसेट हो रहा होता है लाइक 4:30 to 7:30 एंड के अराउंड में. अब जगह जगह अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइमिंग प्रीफर करती है, बट इट इज मोस्टली अराउंड दिस टाइम दैट हैज द गोल्डन आवर्स ऑफ सनलाइट. सो अगर तुम उस स्पीड में सनलाइट लेते हो, दैट इज फकिंग बेनिफिशियल फॉर यू in every aspect of life, not only increasing testosterone or growth hormones. So moving on to the fourth method is ancient chi method. अब ये नाम मैंने अपने मन से नहीं रखा है, you can search it. ये एक्चुअल में एक मेथड है which is from very ancient time and इसमें बहुत पुरानी चीजें हैं, लाइक पुरानी मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जो which eventually जो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को डीकम्प्रेस करती है, तुम्हारी लेग्स को खोलती है, एंड विच आर ऑल्सो यू नो वेरी बेटर फॉर योर मोबिलिटी एंड एवरीथिंग. इसमें मेनली हम मसल एक्टिवेशन, बोन एक्टिवेशन एंड योगा की बात करते हैं इन दिस पर्टिकुलर मेथड. सो द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू से इज वेरी सिंपल. स्टार्ट हैंगिंग, नॉट पुल अप्स, not I'm talking not talking about pull-ups. Actually start hanging. Go and just hang yourself for 2 minutes in the morning and 2 minutes before sleeping. It will decompress your spinal cord, your legs. एक तुम्हें बहुत, तुम जब ये करके देखोगे ना, तुम्हें बहुत एक स्ट्रेच फील होगा तुम्हारी पूरी बॉडी में, मेनली इन लोअर बैक एंड यू नो थाइस के नीचे, घुटनों के पास.
बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है व्हेन यू डू इट. आई एक्चुअली डू इट एवरी डे बिफोर माई वर्कआउट. मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ तो बिफोर माई वर्कआउट मैं पक्का वो 2 मिनट के लिए एज अ मोबिलिटी रूटीन में लेके उसको मैं हैंग होता ही हूँ, लटकता ही हूँ. एंड बिफोर स्लीपिंग मेरे रूम में एक रॉड लगी हुई है, मैं उसमें लटकता ही हूँ. मेरी हैबिट बन गई है वो, अब एक मैं वो करता ही हूँ फॉर 2 मिनट्स. एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंशियंट मेथड टू बी ऑनेस्ट आई विल से. Now, second thing here is cobra stretch. If you don't know how to do cobra stretch, मैं उसका एक बी रोल डाल दूंगा कि कोबरा स्ट्रेच क्या होती है. यू विल गेट माई पॉइंट. अगर मेरी वॉइस और बी रोल अभी दिख रहा होगा दैट हाउ व्हाट कोबरा स्ट्रेच इज. सो कोबरा स्ट्रेच एक्चुअल में क्या करती है, इट अनेबल्स डीकम्प्रेशन पेयर्स बाय हैंगिंग मोशन to achieve full decompression, and also it aids your spine and gut area to decompress. Like जब तुम हैंग होने के बाद कोबरा पोज करते हो देन तुम्हारी जो गट एरिया है वो और तुम्हारी लोअर बैक और स्पाइन दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से डीकम्प्रेस और स्ट्रेच होती हैं. तुम्हें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें स्पाइन में एक प्रेशर और एक स्ट्रेच फील हो रहा है. दैट मीन्स यू आर डूइंग द करेक्ट फॉर्म एंड इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू. सो स्टार्ट डूइंग कोबरा स्ट्रेचेस, एड दैट इन योर रूटीन टू. नाउ द थर्ड थिंग इज पुल-अप्स. Yes, pull-ups also help you doing that. You can start doing weighted pull-ups जहाँ पे तुम्हें एक बेल्ट बांधनी पड़ती है and you do pull-ups, weighted pull-ups. उससे तुम्हारी बैक को एक एडिशनल वेट दिखता है, वेट का प्रेशर पड़ता है. एंड इवन दो इट इज एक्सीलेंट फॉर बिल्डिंग योर मसल्स, इट इज ऑल्सो एक्सीलेंट फॉर स्ट्रेचिंग योर लोअर बॉडी विथ इट्स फुल एक्सटेंट. एकदम फुली अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाते तुम इफ यू डू दैट. If you actually do pull-ups with weighted pull-ups, वो तुम्हारी लगभग 2 इंचेस ज्यादा बढ़ा देता है स्ट्रेचिंग को. इतना ज्यादा इफेक्टिव है वो. सो ट्राई एड दैट इनटू योर वर्कआउट रूटीन. उस आदत को तो कभी छोड़ो ही मत, लाइफ लॉन्ग करो एंड ट्राई एडिंग दैट टू योर रूटीन. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड 4 मेथड्स, देयर इज अनदर पार्ट विच इज बोन रीमॉडलिंग. बट मैं वो तुम्हें एक्चुअल में डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकता हूं. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा तुमसे, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज आई एम हियर टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर यू. और मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दूं. सो द थिंग इज कि बोन रिमॉडलिंग, व्हाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एंड टेलिंग यू बोन रिमॉडलिंग इज बिकॉज बोन रिमॉडलिंग में बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, बहुत सारी मसल्स, बहुत सारी बोन्स की चीजें हैं विच इज रियली हार्ड टू रिमेंबर एंड हार्ड टू एक्सप्लेन. ऐसे जैसे मैं बोल बोल के तुम्हें समझाता हूँ इन माई ओन वर्ड्स, उनमें ऐसे बोल के एक्सप्लेन करना इट इज रियली डिफिकल्ट. एंड ऐसे मैं कुछ गलत ना बोल दूं जिससे तुम्हें कुछ हार्म हो जाए. सो इसलिए आई एम नॉट सेइंग इट, बट इट इज ऑन द ई बुक विथ अ सेपरेट चैप्टर. मैंने उस एज अ सेपरेट चैप्टर बोन रिमॉडलिंग का बना के पूरा डिटेल में साइंटिफिक टर्म्स यूज करके पूरी नॉलेज दी है. बट द थिंग इज आई एम नॉट मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी ई बुक खरीदनी पड़ जाए तुमको, बट आई एम बीइंग फकिंग ऑनेस्ट कि मैं भाई देखो मेरे को बहुत सारी चीजें डिटेल में. एंड मैं बोन रिमॉडलिंग एक्चुअली इज टोटली बेस्ड ऑन रिसर्चेस एंड साइंटिफिक टर्म्स. सो मैं उन चीजों को विदाउट एनी विदाउट रीडिंग या मैं बिना देखे उन चीजों को डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकता बिकॉज इट इज सो फकिंग हार्ड टू मेमोराइज इट. यस, आई एम अ लिटिल डम ऑन दैट. मैं थोड़ा डम हूं कि मैं नहीं याद रख सकता एकदम डिटेल में उन चीजों को. बट आई कैन टेल यू माई ओन हाइट रूटीन. मैं तुम्हें अपना खुद का हाइट रूटीन बता सकता हूं. दैट द थिंग विच आई एक्चुअली डू राइट नाउ, मैं अभी कौन सी चीजें करता हूं एंड मैं कौन सी चीजें करता आ रहा हूं. सो डायरेक्टली गेट इनटू इट. आई विल नॉट वेस्ट योर मोर टाइम बिकॉज आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी. सो द फर्स्ट थिंग आई डू इज मेडिटेशन. एंड नाउ यू विल बी वंडरिंग कि भाई मेडिटेशन से हाइट का क्या रिलेशन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जब तुम मेडिटेट करते हो अगेन एंड अगेन, इट्स बीन शोन दैट इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल, नॉट कैरेस्ट्रॉल बट कोलेस्ट्रॉल. एक टर्म होता है ये जो
अनेबल करता है तुम्हारे ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को. लाइक आई टोल्ड यू, इसलिए बोन रिमॉडलिंग में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दैट इज सो फकिंग साइंटिफिक. सो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट पार्ट. इफ यू वांट टू go more deeper, you can buy the ebook. So let's move into back into this कि अब lower cortisols, it's something pronounced like that, I will put the spelling here. वो जो है which that enables your optimal testosterone production. So meditation से ये शो किया गया है that if you do meditation regularly, देन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमिज्म, टेस्टोस्टेरोन, एचजीएच, आईजीएफ1 का जो ऑप्टिमाइजेशन है बॉडी में वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है. एंड हाउ डू आई डिड स्टार्टेड मेडिटेशन एक्चुअली. मैंने मेडिटेशन ऐसे स्टार्ट किया, मैं एक 30 सेंटीमीटर का स्केल्स अपनी वॉल के सामने रखता था, देन उस वॉल में एक पेपर स्टिक करता था एंड उसमें एक रेड सर्कल बनाता था, देन उसे सराउंड करता था ब्लैक सर्कल से, ब्लैक डॉट से, एक्चुअली नॉट सर्कल, ब्लैक एकदम डॉट से, और मैं फोकस करता था विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई. मैं सिर्फ उस सर्कल को देखता रहूं एंड मैं उसे देखता रहूं एंड देन थोड़ा सा डिजी फील होता था कि घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है या कुछ कुछ तो हो रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी. बट आफ्टर दैट फीलिंग, जैसी वो फीलिंग पास अवे होती थी, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. एंड ऐसे ही 15-20 मिनट बीत जाते थे एंड आई डू दैट बिफोर स्लीपिंग एंड माई स्लीप इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई थी उसके बाद स्लीप, डीप स्लीप, दैट मेरी जहां पे स्लीप का परसेंटेज, हेल्दी स्लीप का परसेंटेज 60 था, वो 95 अराउंड हो गया था. आई यूज्ड स्लीप ट्रैकर एट दैट टाइम. अब मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज मैं ओवरकम कर गया उस चीज को. बट 60 से 95%, लाइक 35% का इंक्रीमेंट आया था विद इन अ मंथ बाय जस्ट डूइंग इट. सो now, as we have discussed about meditation, the second thing I do is exercise. It's simply, तुम्हें समझ आ गया होगा. Doing exercise, I regularly do sprinting. Sometimes I do swimming and cycling भी मैं regularly कर ही लेता हूँ. Like week में 1 या 2 बार साइकिलिंग हो जाती है, बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे स्प्रिंटिंग करता हूँ. स्विमिंग इसलिए नहीं कर पाता रेगुलरली बिकॉज एक्सेसिबल नहीं है मुझे स्विमिंग रेगुलर बेसिस पे. बट यू नो, once in 15, 16, 20 days, maybe once in a month मैं स्विमिंग कर लेता हूँ. एंड दैट्स माई टाइप ऑफ एक्सरसाइज. एंड ऑफ कोर्स मैं बॉडी बिल्डिंग तो करता ही हूँ, लाइक बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस कि मैं जिम में वेट लिफ्ट तो करता ही हूँ. बट देयर इज अ थिंग, अवॉइड डूइंग deadlifts because it decompresses your lower back and your spine, and avoid doing heavy overhead presses because ये भी तुम्हारी स्पाइन पे प्रेशर पुट करते हैं ऊपर से, जिसमें यस इट decompresses and stop your growth plates to open up. वो थोड़ा दबाती है तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स को. इमेजिन लाइक दैट कि ये तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स हैं, अब तुम हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो ओवरहेड में तो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है. सो इट रियली, अब बेंच प्रेस में प्रेशर नहीं पड़ता बिकॉज तुम्हारी बाइन एक रेस्ट पोजीशन में, बट अगर तुम डायरेक्टली ओवरहेड प्रेसेस कर रहे हो देन इट रियली पुट्स प्रेशर ऑन योर spine that which decompresses it. So avoid these exercises which decompresses your spine. Now another thing is sleeping. I take 7.5 to 8 hours of sleep every day. That's my target कि मैं इतने टाइम ऑफ स्लीप तो लूँ, क्योंकि it helps you recover, and most of the recovering part like fracturing method का part, तुम्हारी heating method का part and meditation करने का reason, और ये सब इसलिए है because तुम optimal sleep ले पाओ, क्योंकि तुम्हारी optimal sleep में ही तुम्हारा HGH सबसे ज्यादा बढ़ता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा बढ़ता है जब तुम स्लीप ले रहे होते हो, जब तुम रिकवर हो रहे होते हो. एट दैट मोमेंट सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्रोथ दिखती है हार्मोन में. इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के साथ पिछले पार्ट्स में बताया कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द बेस्ट थिंग इज विच यू कैन डू इज स्लीप एवरी डे एट द सेम टाइम एंड वेक अप एवरी डे इन द सेम टाइम. अगर तुम उस चीज को फॉलो कर लेते हो, एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट ईजी. साउंड ईजी करता है बहुत, बट इट इज नॉट ईजी. सेम रूटीन में सोना, सेम रूटीन में उठना, बट इफ यू डू इट, इट विल गिव यू एन extra upper hand and advantage to get results quicker. Now another thing is dieting. मैं बहुत रॉ फूड खाता हूँ, मैं प्रोसेस्ड फूड बहुत कम प्रीफर करता हूँ. मैं रॉ फूड खाता हूँ जैसे कि घर का खाना, फ्रूट्स एंड चिकन एंड एग्स.
मोस्टली मेरी डाइट में यही सब रहता है, एंड आई प्रिफर हैविंग देम रेदर देन प्रोसेस्ड फूड। एंड मैं सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहा हूँ कोई, बिकॉज सप्लीमेंट्स मैं लेता था जब मेरे को मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टेक सप्लीमेंट्स लाइक D2, K2 and ashwagandha just to increase my testosterone and that, but I stopped using it for a while, मतलब काफ़ी टाइम हो गया I've stopped using it, like 4-5 months हो गए I've stopped using it, because it's simply because अब मेरा lifestyle इतना healthy हो गया, my testosterone already on a very good level, my sleep is optimal, my growth hormones are optimal, I can already see results. But as of you're starting, take the help of supplements, then make your lifestyle happy and healthy, then eventually you can say no to supplements. Now, the last thing I do is stretching. Why stretching? The simple thing is, मैं किस टाइप की स्ट्रेचिंग करता हूँ? एवरी मॉर्निंग मैं हैंग करता हूँ 3 मिनट के लिए, एंड एवरी नाइट मैं हैंग करता हूँ 3 मिनट के लिए। अब तुम लोग को लगेगा कि 3 मिनट के लिए हैंग करना, इट साउंड्स वेरी सिंपल, बट एक्चुअली दैट्स टफ। मैं गारंटी लेता हूँ 90% ऑफ यू 1 मिनट से ज़्यादा हैंग नहीं कर पाओगे। 90% ऑफ यू, तुम्हारे हाथ स्लिप हो जाएंगे, तुम छूट जाओगे, तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज तुम्हें आदत नहीं है। बट वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ increasing and hanging, it really decompresses and give you stretch in your whole body, which is really, it is a steroid to increase your height. A very ancient method, but it's a steroid. And also I do upward dog pose, cat pose, Y pose each morning, and cobra stretch each morning. So I am being very honest that कि मैं ये रूटीन एक्चुअल में अब हाइट के लिए फॉलो नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं 5'9" था, एंड नाउ तब मैं इनसिक्योर था, लेकिन अब मैं 5'11", 5'11.5 और 6 फीट हो गया हूँ। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सो मेरी फैमिली के जेनेटिक्स के हिसाब से दिस हाइट इज प्रीटी गुड, एंड अब मैं ये चीज़ें इसलिए करता हूँ बिकॉज अब वो मेरे अंदर बिल्ड हो गई है, लाइक डेली स्ट्रेच करना, सनलाइट लेना, एंड हैविंग अ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, बिकॉज माई लाइफ स्टाइल इज़ नाउ हेल्दी। मैं उसमें मूव ऑन हो गया हूँ। तो मेरा पर्पस अब हाइट नहीं है, बट इज़ दैट कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है। सो आई एम जस्ट डू इट बिकॉज मैं उस चीज़ को बिल्ड कर लिया हूँ। नाउ अदर थिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फुल गाइड, एंड आई एम टेलिंग यू माई ब्रदर, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, यू हैव माई रिस्पेक्ट, you gained my respect, because this video have no edits, it's no dopamine indulging video, just pure knowledge, and it's like I am giving this advice to my younger brother or even my older brother that how can I help you. मैं सच में एडवाइस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एज एडवाइस एज माई नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या मेरे पास कुछ ऐसी गाइडेंस होती दैट आई कैन प्रैक्टिकली इंक्रीज माई हाइट. So this was the full guide for increasing your height, and if you actually implement the steps, then I am telling you, you will see a significant result, significant increase your height and in results. And also बहुत सी साइंटिफिक चीज़ें हैं इसमें, मैं बार बार बोलूँगा, एंड शायद मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली सारी साइंटिफिक चीज़ें कवर नहीं कर पाए, बट यू इवन इम्प्लीमेंट दिस स्टेप्स. इस वीडियो जितनी बड़ी, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़, अगर तुम इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो एंड यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट, एंड अगर तुम यहाँ तक पहुँचे, दैट शोज दैट हाउ डेडिकेटेड यू आर टू डू दिस स्टेप्स, डू दिस मेथड्स, एंड आई बिलीव दैट अब तुम इसको ज़रूर फॉलो करोगे, तुम इवेंचुअली इस चीज़ को करने वाले हो. एंड अगर तुम इसको करने वाले हो, देन डू इट विथ योर 100% डेडिकेशन, 100% डिवोशन, एंड आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे. बट इफ़ यू वांट टू गो मोर डीपर एंड विथ मोर नॉलेज, अगर ये वीडियो 60% है तो, और तुम्हें अगर और 40% नॉलेज चाहिए कि तुम्हारे पास पूरी 100% नॉलेज हो, देन गो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बाय द ई बुक. बहुत नॉमिनल प्राइस है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना तुम पबजी के यूसी खरीदते हो उससे ज़्यादा, लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड दैट्स एन एक्सपेंस. सो आई विल नॉट से एनी मोर. गॉड ब्लेस यू. आई होप द बेस्ट फॉर यू. हसल हार्ड. पीस आउट.